Hello and welcome back to Max World again. Lately we talked a lot of things about the fraction which you might find complicated, but in today's video we will try to do things which are much easier than drinking a tea. What? Easier than drinking tea? No way. Yes, it is much easier than drinking tea, and those are nothing but multiplication and division. For this multiplication and division, again we have one funda. Okay, the one rule that you will find much easier while solving it: numerator denominator, numerator denominator. And for the multiplication, what we are going to do, numerator into numerator and denominator into denominator. That means we are going to make heart shape. Yes, and this is what my love for max. Yes, so for the multiplication we are going to follow one rule, that in which we are going to multiply numerator into numerator, denominator into denominator. And if you find such a number while doing multiplication which is alone or without denominator, keep it in mind, we have to write 1 in the denominator. So here we go with the first sum on your board, is 3 upon 11 into 2 upon 5, in which numerators are 3 and 2, denominators are 11 and 5. So what we are going to do, numerator into numerator, that is 3 into 2, denominator into denominator, that is 11 into 5. And if cancellation is possible, if you can reduce any number from the numerator and the denominator, you can reduce them up and down, keep it in mind, not aside. So if it is possible, go ahead. If it is not, then do the multiplication directly. So we get over here 3 into 2, 6, 11 to 5, 55, and I get the answer 6 upon 55. Isn't this easier? Yes. So let's do one more sum. Okay, here is the second sum on your screen, 12 upon 5 into 4 upon 15. And now if you observe the sums, you might get some chance to cancel out the numbers, right? So over here first step is what, numerator into numerator, that is 12 into 4, denominator into denominator, that is 5 into 15, right? And now check the numbers. If you observe very sharply, you will find that 12 and 15, these both the numbers can be reduced or can be divisible by 3, right? So divide them by 3. Now if you divide 12 by 3, we get the answer 4. If you divide 15 by 3, we get the answer 5, and write those answers near to those numbers. Okay, now we are left with 4 into 4 in the numerator, 5 into 5 in the denominator, and that's it. No cancellation is possible there onward. And so do the multiplication, 4 into 4, 16, 5 into 5, 25, and that's what makes my answer 16 upon 25. Isn't it easy? In the multiplication with the negative sign, we have to apply the rules of integer while operating them. So what are these rules? Two negatives make positive. Okay, and if you find only one number negative, then you have to give negative sign to the answer. That means negative sign continues till the end. And if you want to go deeply in these rules, just check out the link given in the video. Now here we go. The next sum is on your screen, minus 8 upon 9 into 3 upon 4, correct? Now first step is what, numerator into numerator, denominator into denominator, that gives us minus 8 into 3, the whole upon 9 times 4, right? Now observe the numerator and the denominator. Do we find any number which can be reduced? Yes, we can find 4 can reduce 8, 3 can reduce 9. But sometimes if you are not able to notice it, then what can be done? And if you are multiplied, this reduction or this simplification can be done afterwards also. So here we will do in that manner. So numerator we have 8 into 3, do the multiplication. What we get? 24. And as 8 is negative, so we have to give negative sign also. Don't forget it. In the denominator we have 9 into 4, so do a multiplication, we get 36. And now which are the numbers we get? Minus 24, the whole upon 36. And this both the numbers can be reduced by 12. Yes or no? Yes, of course. And after reduction, what we get? When you divide 24 by 12, we get the answer 2, and don't forget to give negative sign to it. And in the denominator we get 12, 3 are 36. So in short, my final answer is minus 2 upon 3. Isn't it easy? Yes. Last sum for the multiplication. Okay, so here is on your screen, 0 upon 6 into 3 upon 4. And there is a world famous rule, and I think all my dear friends and students might be knowing it. Any number multiplied by 0, we always get 0, and 0 divided by any number,
answer is always 0. In both the cases, 0 into 3, we get the answer 0, and 0 divided by any number, we get the answer 0 again, right or not? So 0 into 3, 0 in the denominator, though we have 24, 6 for the 24, even then my answer will be 0. So directly we can write 0 as a final answer. Isn't it easy? Yes. Next part, that is a division that we must understand. Before going to division, we must understand one more a fancy term of mathematics, multiplicative inverse or the reciprocal of a number. Okay, what does it mean? Two numbers when multiplied and the product is 1. When two numbers are multiplied and we get the answer 1, then those two numbers are called as reciprocal of each other. What? Do we have any such numbers that give the product 1? Because I know only 1 into 1 is 1. Correct or not? Then afterwards, do we find any number? Yes, of course, there are there. You just have to write upside down. Okay, now say check out over here. The first one is 2 upon 5. I need to write the reciprocal of it, or I need to find such a number multiplied by 2 upon 5. We get the answer 1. Okay, so what are you going to do? That is called reciprocal actually. So reciprocal of 2 upon 5 is, what sir said, we have to write upside down. Correct? So with the upside 2. So that will go in the denominator, and the denominator, that is 5, will be written in the numerator. So what we get the answer? 5 upon 2 as my final answer. Yes or no? Yes, of course. And let's do one more, sir. Minus 3 upon 8. Negative sign is given, right? Keep it in mind. While writing reciprocal of a negative term, negative sign always stick to numerator. Don't forget that part. Okay. So the reciprocal of minus 3 upon 8. The 8, which is the denominator, must be written in the numerator, right, along with the negative sign, right, and 3, which is there in the numerator, must be written in the denominator. So as a result, I get the answer minus 8 upon 3. Yes, isn't it easy? Yes, of course. Now, what if such a number is given which do not have denominator only? 7, right? So reciprocal of 7, that 7 can be written as 7 upon 1, and now I can write the reciprocal of it. Isn't it or not? Yes. Or directly answer will be reciprocal of 7 is 1 upon 7. Isn't it easy? Of course it is easy. Though few numbers sometimes you find given in the mixed fraction. See over here, minus 7, 1 upon 3, and the way I told you, minus sign always stick to the numerator. So this mixed fraction must be converted into improper fraction first of all, and you know how to do it, isn't it right? Yes. So put a 3 multiplied by complete number, that is 7. So 7 3s are 21 plus 1 in the numerator, that gives you answer 22. So overall I get the answer 22 upon 3, and now reciprocal it upside down. So what can be done? 3 which is in the denominator must be written in the numerator, and numerator, that is 22, must be written in the denominator. So what we get the answer? Minus 3 upon 22, and bingo, now you are all set already for the division of the. So boys and girls, here is the first sum on the screen, 40 upon 12 divided by 10 upon 4. And what is the first rule of the division? Don't do the division. Confused? I mean to say, we will turn that division into multiplication. But how to turn it? That's where the role of reciprocal comes out in the play. What we are going to do, we will be writing reciprocal of a number which is after the division sign, and due to which we can convert that division into multiplication. So how to proceed further? The first fraction, 40 upon 12, will be written as it is. Division sign will be turned to multiplication, and after that you write the reciprocal of 10 upon 4. What is that reciprocal? 4 upon 10, right? And after that, same step of the multiplication, bring back that love, numerator into numerator, denominator into denominator, and move ahead. Here 40 into 4 will be the first step. In the denominator we will write 12 into 10, correct? Now from here onwards we have two ways to complete it. Number one, we can simplify these numbers at that place only, okay, before doing multiplication, or first you carry out the multiplication and then you simplify them. Simplify means reduce them. Okay, so over here we'll do multiplication first and then we'll simplify it. As a result, 40 into 4 we get the result 160, and 12 into 10 we get the result 120. Okay, now which number you find it easier to reduce them? We can reduce it by 5, by 2, by 10, by 40. Yes, 40 also. Yes, but if you are not able to get that number very easily, what we can do? See, unit place, both the numbers have 0 0,
divided by 10 first of all. Okay, as a result, when 160 divided by 10, we get the answer 16. Okay, and when 120 divided by 10, we get the answer 12. Okay, so what the fraction we got? 16 upon 12. Now this 16 and 12 both are divisible by 4, right? So when 16 is divided by 4, we get the answer 4 itself. When 12 is divided by 4, we get the answer 3, and as a result we get the new fraction 4 upon 3, and which is cannot be reduced for any further, right? And that is why my final answer is 4 upon 3. Isn't it easy? Yes. So what are the steps, boys and girls? Very first, we have to convert that divisions into multiplication by writing reciprocal of a number. But which number? The one which comes after the division sign. So here we go with one more sum on your screen. Okay, the question is minus 10 upon 11 divided by minus 11 upon 10. So which is the first step? We'll write first fraction, that is minus 10 upon 11 as it is. Division sign will be turned to multiplication, correct? The way you're looking at the screen. And after that, the second fraction, which is that minus 11 upon 10, will be turned to their reciprocal form, and as a result I get the answer minus 10 upon 11. Correct or not? Yes. And now we have two steps, the way I told you. Minus 10 into minus 10, 11 into 11. Okay, now here if you observe, both the numbers have negative sign, and as a result to the final answer I need to give positive sign. Correct or not? And after doing multiplication, what the following the first step, what the answer we get? 10 into 10, 100. That will be the positive one because both the numbers are negative. And in the denominator, 11 into 11, we get the answer 121, and that's what makes my final answer, because these both the numbers are not at all simplified by any other number. Correct? And bingo. Okay, here we go with one more sum on the screen. 2 upon 3 divided by 4. Only 4. The way I told you, if you come across with a single number, then that number can be considered or can be written in the fraction form by writing 1 in the denominator. Okay, so here first step is write the first fraction, that is 2 upon 3 as it is. Division sign will be turned to multiplication. Okay, and then which is the second number? 4. Second fraction I mean to say 4. 4 upon 1, and what is the reciprocal of it? 1 upon 4. 2 upon 3 into 1 upon 4, this is what I get. Which is the first step? Numerator into numerator, that is 2 into minus 1, and then 3 into 4 in the denominator. Correct or not? Yes. Now what we can do? After this, the way I told you, there are two ways. Which are those two ways? One, you simplify the numbers in that place itself, or you do the multiplication and then you simplify. The way I told you, you can choose any method. I'll do multiplication first. 2 into minus 1, I get the answer minus 2, and then 3 into 4, I get the answer 12. These both the numbers 2 upon 12 there are divisible by 2. 2 answer is 1. That results in minus 1 because only one number is negative. And then in the denominator, 2 6 are 12, so 6 will be there. So as a result I get the answer minus 1 upon 6. Isn't it easy? Next one on the screen. 5 divided by 2 upon 5. Again, only single number is given to you without any denominator. So what will be the denominator? 1. Keep it in mind. So which is the first step? Write the first fraction as it is. Here fraction is not there, so I'll write only 5 as it is. So 5 can be written as 5 upon 1 also. Keep it in mind. So 5 5, that division sign will be turned to multiplication, and then reciprocal of the second fraction, that will be 5 upon 2. After this, numerator into numerator, denominator into denominator. So for the denominators, numerator it is easy, 5 into 5. For the denominator, along with the 2, if you write 1 or not write 1, doesn't matter because the value doesn't changes. 2 into 1, it remains 2 only. Correct? So in short, we have 5 into 5, the whole upon 2, and after carrying out the operation or the multiplication, we get 25 upon 2, and that makes my final answer. Yes or no? Of course. And as you know, these all are easy sums. What if in the division we are given with the mixed fraction? Mixed fraction, I know my children are comfortable enough and confident enough to turn it into the improper fraction. Isn't it right? Of course. Even then, pay attention now. Here the sum is on the board. The question is 2 1 upon 5 divided by 5 3 upon 6. So what is the first step? We will turn this mixed fraction into improper fraction. How to turn it? Very first,
denominator into complete number, that is 2 into 5, yes, and then what is the result? 10. 10 plus the numerator, that is a 1. So what we get? 10 plus 1, 11. So in short, I get the fraction 11 upon 5. Yes or no? Yes. Then for this conversion, keep the division sign as it is. Which is the second fraction now? 5 3 upon 6. What to do? Denominator into complete number, that is 6 into 5. Then plus numerator, correct? 6 5 are 30. 30 plus 3, 33. And then the converted fraction is 33 upon 6. Boys and girls, always keep it in mind, after converting mixed fraction into improper fraction, denominator remains same. It remains unchanged. Keep it in mind. Now, as everything is settled down, we got the normal fraction. What is to be done now? That division will be turned to multiplication by writing reciprocal. Reciprocal of which number? Yes, the second fraction. Now, first fraction will be written as it is, that is 11 upon 5. Division sign will be turned to multiplication, isn't it right? Of course. And that 33 upon 6 will be done as 6 upon 33. I hope you understood. Now, numerator, that is 11 into 6. In the denominator, 5 into 33. And there are again two ways. Either you simplify it right now or do the multiplication and simplify it afterwards. Okay. So what we are going to do, we'll simplify it here only this time. So 11 and 33. Can you observe it? We know that in 11 7 we get the 33. So divide this both the number by 11. So divide by 11. When 11 is divided by 11, answer is 1. Write it next to 11 itself. 33 divided by 11, we get the answer 3. Write it next to 33. So in short, I get the answer in the numerator 1 into 6 and result is 6 itself. In the denominator 5 into 3 and result is 15. Yes or no? Of course. Here onwards also, if you are not multiplying that 5 into 3, if you observe 6 and 3 again can be simplified. Yes, so simplify them by 3. So what do we get? 6 divided by 3, we get the answer 2 in the numerator and numerator 2 in the denominator 5. Isn't it right? Yes, and that is my final answer. So boys and girls, here we have completed with the division part. Keep it in mind, while doing division or multiplication, we have to follow the rules of integer. If you come across with the negative sign, and if you have any difficulty, do not forget to write it in the comment section below. I'll be waiting for it. See ya, stay tuned for the next video. We are going to learn about operations on rational number. Okay, I hope आपको आवाज मस्त की क्लियर होगी, I guess. ओके बट सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस लेसन का मीनिंग क्या होता है, रैशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है, पहले हम उसे समझने की कोशिश करते हैं. बच्चों, रैशनल नंबर मतलब होते हैं फ्रैक्शंस. पहली बात तो याद रखो, रैशनल नंबर्स मतलब होते हैं फ्रैक्शंस, पर ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन का, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, तो आपको क्या याद रखने का है कि फ्रैक्शन विथ नॉन जीरो डिनोमिनेटर, एकदम शॉर्टकट वाला डेफिनेशन. फ्रैक्शंस विथ नॉन जीरो डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर, इजंट इट? तो चलो अभी शुरुआत करते हैं हम पहले इन ऑपरेशंस को समझने की, जैसे कि हमारा जो मेन एम है आज का वो पूरा हो जाए. क्या है? सबसे पहले क्या बोले उन्होंने, देखो एडिशन करना है हमें, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड डिवीजन करना है. तो बेटा इसके अंदर जो सबसे इजी वाला है ना, सबसे इजी वाला वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो वी विल बिगिन विद इजियर पार्ट एंड देन विल मूव ऑन टू द हार्डर वन. तो जैसे कि हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि भाई हमको आता है करके ये, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. वी आर गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 4 क्या बोला जा रहा है वहां पे कि राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. तो सबसे पहले मैं आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता क्या है मैं पहले आपको वो बताऊंगा, समझने की कोशिश करना बच्चा आप लोग, ठीक है. क्या बोला सर ने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, आई एम जस्ट स्टेटिंग यू द मीनिंग. तुम में से किसको किसको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? बेटा इसको एक और नाम बोला जाता है, उसे बोला जाता है रेसिप्रोकल. ये दोनों नाम इसी के हैं. क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल. अब देखो, अब इसका मीनिंग क्या होता है. अगर मैंने
टू नंबर्स, देखो ध्यान सुना, टू नंबर्स हुज मल्टीप्लिकेशन इज वन, those numbers are called as multiplicative inverse of each other. अब बताओ बोले ऐसे हो सकता है क्या कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन वन, एक तो आपको पता है कौन सा, वन इंटू वन इक्वल टू वन, फिर ऐसे कोई और भी नंबर है क्या कि जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर वन आ सकता है? व्हाट डू यू फील बच्चों? आरजा, टू नंबर्स ओके हुज प्रोडक्ट इज वन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट इज वन is called as multiplicative inverse or reciprocal of each other, isn't it? समझा क्या बोला सर ने? टू नंबर्स whose product is one is called as are called as multiplicative inverse और reciprocal of each other. ओके, समझ में बात? अभी कैसे होते हैं देखो, एग्जांपल देखो, अगर मैंने वन इंटू वन करना है तो आंसर वन आएगा, तो ये तो बेसिक है, ये सबको पता है या नहीं? तो वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वन ही होगा। पर अब देखो, अगर मैंने टू दिया है तो टू के साथ मुझे ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरा आंसर वन आएगा? आपको क्या करना पड़ता है? देखो ये तो आपका पहला एग्जांपल था, अब देखो ये दूसरा एग्जांपल आपका, ठीक है? ये टू है ना, दिस टू इज नथिंग बट व्हाट? टू अपॉन वन, इजंट इट? दिस टू कैन बी रिटन एज टू अपॉन वन। ओके, तो मुझे करना क्या होगा? मुझे ये जो नंबर है ना उसको मैंने क्या कर दिया? फ्रैक्शन मोड में लिख दिया। दिस इज नॉर्मल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर, बट आई हैव रिटन इट इन दी फ्रैक्शन मोड, ठीक है ना? मोड एक्टिवेटेड। इसको उल्टा कर देना है मुझको। तो फॉर टू रेसिप्रोकल ऑफ टू इज वन अपॉन टू, इजंट इट? तो फिर अभी आप चेक तो करो, टू इंटू ये करने की अगर बारी आई मुझको, तो देखो हमारे पास मैंने क्या बताया आपको, ये टू को कैसे लिखते हैं अपन? टू अपॉन वन लिखते हैं, इजंट इट? है ना? रूल देखो हमेशा, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर मुझे करना पड़ता है, एंड देन इफ रिडक्शन इज पॉसिबल अप एंड डाउन देन गो फॉर रिडक्शन। ओके, तो देखो अभी यहां पर देखो, टू इंटू वन टू, टू इंटू वन टू, है या नहीं? एंड नाउ रिडक्शन इज पॉसिबल, है या नहीं? रिडक्शन मैं दोनों को भी डिवाइड कर सकता हूं टू से, तो मेरा आंसर क्या? या फिर टू डिवाइड बाय टू, आंसर विल बी वन ओनली, वन अपॉन वन या वन, एंड हेंस दीज टू नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? रिवाइज हो गया पूरा कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल का एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है? अगर आपको नॉर्मल फ्रैक्शन दिया हुआ है कि राइट दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ 7 अपॉन 11, ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो? आप क्या करने वाले हो? हमें तो क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा क्या आंसर आएगा बच्चा इसका? जल्दी बोलो। अरे वाह, वेरी गुड सांची। रेसिप्रोकल ऑफ 7 अपॉन 11 इज 11 अपॉन 7 एंड फिनिश्ड। अपॉन बेटा, अपॉन 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 नहीं जाने का बेटा, ठीक है? डोमिनिक क्लियर हुआ आपको क्या क्या? तो अभी आपको क्या करना है, इसका बस एक झकास दिनों से फोटो खींच के ले लेना आपको, ताकि आपके पास एक ये आ जाए, क्या? एक इंफॉर्मेशन आ जाए आपके पास, ठीक है? जल्दी करो, चलो फोटो खींच लो जल्दी से, फटाफट एकदम। फॉर वन याद रखना, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन इज ऑलवेज वन। ओके, अब ये हो गई इंफॉर्मेशन। अब देखो ये इंफॉर्मेशन पहले समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसके बिना मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं सीखता हूं। अब देखो रूल्स क्या है मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आई गोइंग टू टीच यू अबाउट मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखो क्या होता है, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नाउ दिस इज PS22. Okay, I'm beginning with PS22 and this is question number 3 we are going to solve. Okay, we are going to begin. I'm going to shuffle the question but definitely you will understand it. Okay, अब देखो क्या है क्वेश्चन मेरा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 आता है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 अपॉन 11 इंटू 2 अपॉन 5। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बोला ना मैंने, ओ हो सो सॉरी। मैं चालू कर दूं क्वेश्चन नंबर 4? मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपको, पता चलो, ठीक है? यहाँ पे ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ओके ओके ओके, चलो। हाँ, मैं भूल ही गया, मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिखाया ना, मैंने बोला कि आपको बस कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने। चलो ठीक है, देखो बच्चा, दिस इज
PS22 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. अब देखो, मुझे बोला गया कि राइट दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रिमेनर, जो भी क्वेश्चन आपको दिए उनका 2/5. तो हम कैसे लिखेंगे फिर? आप इसको अभी इतना बड़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने की जगह पर आपने अगर रेसिप्रोकल लिखा तभी भी चलता बेटा, ठीक है, याद रखना इस बात को. हाँ, तो सर तो रेसिप्रोकल लिखने वाला है, रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज 5/2. बस आपको क्या करना है, उल्टा कर देना उसको, बाकी कुछ नहीं करना बेटा. दिस इज योर फर्स्ट वन. ओके, सेकेंड वन, द नंबर इज -3/8. अभी याद रखना, नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में ही रहेगी, तो मुझे कैसे लिखना फिर, रेसिप्रोकल ऑफ -3/8. ये नेगेटिव की साइन ऊपर ही रहेगी, अब फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, -8/3. ठीक है, समझे आप सर ने क्या बोला? तो याद रखना बच्चा इस बात को, नेगेटिव साइन हमेशा देखो कन्वेंशनली, ओके, हम हमेशा नेगेटिव साइन एक तो न्यूमरेटर में ही लिखेंगे या फिर ऐसे सेंटर में लिखते हैं. अंडरस्टूड सर ने क्या बोला? तो एक तो ऐसे सेंटर में रहेगी नेगेटिव साइन, ओके, फ्रैक्शन की, या फिर 3 के पास रहेगी न्यूमरेटर में. इतनी बात को हमेशा याद रखना बच्चा, ठीक है? क्लियर हुआ? अभी थर्ड वन, क्या क्वेश्चन है? मुझे बोला है -17/39. सिंपल है ना? ये भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ -17/39 इज, हाँ बस नेगेटिव साइन ऊपर ही रहेगी, देन आई एम गोइंग टू राइट 39/17 एंड सम इज डन. बस उल्टा कर दे, बाकी कुछ सोचना ही हम नहीं हमें है, बस उसको उल्टा लिख करके लिख देना है, और नेगेटिव साइन की तरफ जरा ध्यान देना. अभी ये रहा खतरनाक क्वेश्चन. 7 दिया आपको, दिस 7 कैन बी रिटन एज 7/1, इजंट इट? दिस इज एडजस्टमेंट दैट वी हैव डन. ठीक है, हाँ, वेरी गुड हर्षिता, नहीं सांची, आदित्य ने भी दिया आंसर, वेरी गुड अदिति. रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज 1/7, इजंट इट? इजी था नहीं तो सर, कुछ खतरनाक नहीं है. अरे अभी तुमको आता है ना, इसलिए खतरनाक नहीं लग रहा है. कुछ दिनों के बाद जब बल्क में आता है ना, ठीक है, तो पता नहीं कि क्या हो जाता है वहां पे. अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अभी कुछ क्वेश्चन देखो कैसा है, -7 1/3. अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको पहले हम क्या, देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन. सबसे पहले मैं इन्हें टर्न करके लूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड देन वी विल गो अहेड. ओके, कैसा करना पड़ेगा मुझको? आपको याद है कैसे टर्न करते हैं? 3 × 7 एंड देन +1, याद है? हाँ, ये नेगेटिव की साइन नेगेटिव, 7 × 3, ओके, एंड जो भी आंसर आएगा उसके अंदर +1 करना है मुझको, एंड अपॉन का 3 एज इट इज रहेगा. ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा मुझको, 7 से कितना था, 21 + 1 22, मतलब क्या हो मेरा आंसर यहाँ पे, 22/3. ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखना. हाँ, अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मेरी लाडली. सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना है. ये देखो, ये जो साइन है ना, कुछ ऐसे है भला क्या, ये ऐसे है, ठीक है, समझे आप? कुछ ये ऐसे होने वाला है फ्रैक्शन है, और फिर हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑफ -7 1/3 इज -3/22 एंड देन सम इज डन, इजंट इट? अब ये पांचों के पांचों हो गए तुम्हारे, 5 ही थे ना इसके अंदर, क्या ज्यादा? हाँ चलो 5 थे. अब क्या करना है आपको, एक प्यारा सा सेल्फी, फोटो तो बनता है, मैं तो सेल्फी बोल रहा था. जल्दी कर लो बेटा, एक फोटो खींच लो इसका अच्छे से एकदम. डन, आई होप कि डन. अच्छा है, चलो अभी नेक्स्ट वाला करें. देखो क्या बोला जा रहा है. हाँ, अब गाड़ी आती है मल्टीप्लिकेशन की. नाउ वी आर गोना सॉल्व विद क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में अभी देखो, एक डायलॉग आपको याद रखने का है. व्हेनेवर वी आर गोना मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस, कीप इट इन माइंड, ओके, व्हेनेवर वी आर गोना मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस, we will multiply in this manner. Which one? Numerator into numerator, denominator into denominator. If reduction is possible, up and down, okay, then we have to reduce it, isn't it? तो क्या होगा फिर, मैं सर अभी लिख रहा है, देखो समझो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर. देखो याद रखना,
मल्टीप्लाई आता हो सीधा सीधा जाने का 3 into 2, देन व्हाट वी हैव टू राइट, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 11 into 5, ठीक है। एंड नाउ कैन वी डू रिडक्शन अप एंड डाउन, वो चेक करने का, आजू बाजू नहीं, अप एंड डाउन। अगर नहीं हो रहा है तो बस मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी माय फाइनल आंसर। तो 6/55 हो गया हरिओम, इजंट इट इजी है ना बहुत। अब सेकंड वाला देखो बेटा, क्या बोला जा रहा है, 12/5 इंटू 4/15, ठीक है। फिर से क्या करने को बोला सर ने, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो ये हो गया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, देन व्हाट, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। नाउ क्या चेक करने का कि रिडक्शन पॉसिबल है क्या, ऊपर नीचे, नॉट आजू बाजू। ओके, देखो आप बोलोगे कि 4 की टेबल में 12 आता है, तो ऐसा नहीं चलता है। अब चेक करो कि ऐसा कोई नंबर है क्या ऊपर नीचे कि जो एक सेम टेबल में आते हैं। नहीं 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 नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करने का डायरेक्टली। पहले ये बताओ कि ऐसा कोई नंबर है क्या जो रिड्यूस हो सकता है इन दोनों में। आप नोटिस कर रहे हो, ये ऊपर का 12 एंड ये 15 दोनों भी 3 की टेबल में आते हैं। ध्यान दो, दोनों भी क्या होते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, डिवाइड बाय 3, मतलब क्या करना है मुझे, इन दोनों को रिड्यूस करना है 3 से। तो क्या होगा फिर, 3 5 15, इजंट इट, 3 की टेबल में 15 का आता है 5 तो मैं इसको कट करके वहां पे 5 लिख दूंगा। थोड़ा जूम करूं, ओके इतना, हाँ इतना ठीक है। मैं 5 लिख दिया। अभी 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 इजंट इट। नहीं एचसीएफ नहीं, डोमिनिक वो कुछ भी नहीं करने का मेरे को। हाँ चलेगा एचसीएफ, हाँ वो भी चल जाएगा बेटा, एचसीएफ और बोला तो नहीं, हाँ हाँ विल डू बेटा विल डू। आपको क्या याद रखने का, आपने क्रूड लैंग्वेज में मुझे ऊपर नीचे 2 नंबर ऐसे ढूंढने के कि अगर वो सेम टेबल में आ रहे हैं तो उसको डिवाइड कर देने का, रिड्यूस कर देने का उनको। और 12 भी आता है, क्या आता है 12 सा, 3 4 आता है ना 12। नाउ विच नंबर्स वी हैव 4 into 4, आंसर कितना आएगा 16। देन व्हाट डू वी हैव 5 into 5, आंसर कितना आएगा 25, एंड दिस इज माय आंसर। ओके, ये रहा एक पहला वाला तरीका। दूसरे वाले तरीके में क्या होता है कि आप जो कर रहे थे ना, पहले आप मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर रिड्यूस करते हो। पर बेटा जिंदगी में एक बात को याद रखना कि जब हम किसी चीज को, आप देखो मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा कर देते हो। अब बड़े वाले नंबर को रिड्यूस करने के लिए नंबर ढूंढना दूसरे, वो ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। जब वो छोटे छोटे है ना, तभी उनको रिड्यूस करने की कोशिश करने की, दैट इज द ऑलवेज बेस्ट मेथड। जिस चीज को तोड़ना है उसको कभी मत जोड़ो, सिंपल सा फंडा अपने लाइफ का। क्या, जिन चीजों को तोड़ना है उनको तोड़कर ही जोड़ा जाता है, जोड़कर नहीं तोड़ा जाता है। पहले जो अननेसेसरी था उसको निकाल दो, ओके, एंड देन यू मल्टीप्लाई गेट द आंसर, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा लाइफ का फंडा। अभी थर्ड वन देखो, आपको क्या बोला गया कि -8/9 इंटू 3/4। सर ने क्या बोला टेक्निक, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, -8 इंटू 3 द होल अपॉन 9 इंटू 4। क्या लगता है आपको? नहीं साक्षी, रॉन्ग नहीं था, उसके बाद एक स्टेप बढ़ने वाली थी बस। अब क्या होगा रे, अब ढूंढो पहले कि कौन से नंबर किस किस टेबल में आते हैं। देखो मुझे दिख रहा है, मैं ऊपर नीचे 3 की टेबल लगाकर इन 3 और 9 को गायब कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं करने वाला हूं, 3 1 जा, 3 3 जा। उसके बाद मेरे को एक और नंबर दिखता है, मान में कौन सा, 4 और 8 वाला। मैं इसको 4 से भी डिवाइड कर सकता हूं, तो लिख दो वहां पे डिवाइड बाय 4। तो 4 1 जा एंड 4 2 जा। अब देखो कौन से नंबर है मेरे पास, है 2 1 3 एंड 1, इजंट इट। अब देखो 2 into 1 आंसर इज 2, 3 into 1 आंसर इज 3, एंड दिस इज हरिओम, आंसर इज रेडी। समझे कैसे क्या सर ने सॉल्व? और नेगेटिव साइन जो है यहाँ की, देखो यहाँ पे थोड़ी सी दबी थी वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो जाएगी, याद रखना। अब को नेगेटिव का रूल क्या याद रखने का है कि अगर मेरे पास पूरे नंबर्स की लिस्ट में एक ही डिजिट के पास या एक ही नंबर के पास मेरा आंसर कितना आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर भी नेगेटिव रहेगा। पर अगर ऊपर नीचे या फिर आजू बाजू पूरे चारों नंबर के अंदर किसी भी 2 नंबर के पास अगर नेगेटिव साइन है तो मेरा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। हमारा रूल क्या था पता है इंटीजर का, इन मल्टीप्लिकेशन इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम साइन, the 2 negative and 2 positive, then my answer will be compulsorily positive, and if only one number has negative then my answer is negative। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए
इंटीजर के रूल्स के हिसाब से एक ही बात याद रखने की, इफ इन मल्टीप्लिकेशन ओनली वन नंबर इज नेगेटिव देन माय फाइनल आंसर इज नेगेटिव, इजंट इट? तो ये आंसर मेरा नेगेटिव हो गया। इतनी बात को याद रखना बच्चा, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला, ये तो बड़ा एकदम मस्त सम है। आप बताओ एक झटके में इसका आंसर कितना आना चाहिए, जल्दी बोलो मुझको। चलो आपको पता है फंडा, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो आंसर विल बी ऑलवेज जीरो, एनी नंबर जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर, ओके माय आंसर इज ऑलवेज जीरो। समझे कि नहीं समझे? दो रूल आपको पता है कि नहीं पता है? तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो या मल्टीप्लाइड विद जीरो आंसर विल बी ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ी कर रही है साची। अब ध्यान से सुनो, देखो भी यहाँ पे सबसे पहले अपना रूल क्या बोलता है, 0 × 3/6 × 4। यहाँ पे कुछ नहीं करो, आप सीधा जीरो लिख देने का। कैसे पता है कैसे आएगा जीरो, पता है आपको ये? हाँ, जीरो यहाँ पे देखो, देखो 0 मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर इज ऑलवेज जीरो, इजंट इट? समझे कि नहीं समझे आप मैंने क्या बोला? तो हमेशा बात को याद रखने का कि हाँ, आपको आगे लिखने का नहीं, मैं सीधा सीधा मतलब मैं ये लिखने की भी जरूरत नहीं मुझको, मैं सीधा 0/6 × 3/4 सीधा मैं जीरो लिख दूंगा। रीजन क्या है? 0 मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज जीरो। तो बात ही खत्म हो गई, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। अंडरस्टूड? तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या कर देने का, जीरो करके छोड़ देने का उसको। ठीक है, समझे आप मैंने क्या बोला? तो आपको क्या बताई बात? तो इतनी बात को बेटा हमेशा हमेशा याद रखना। फिर यहाँ पे तो सबने गड़बड़ कर दिया नहीं बेटा, ये तो कॉमन सेंस थोड़ा सा बस यूज करने का उसका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया बेटा, समझ में आ रहा है आपको कि क्या करना है, कैसे करना है करके। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के जो 4 सम थे बेटा वो हमने तो सॉल्व कर दिए, उसमें बस ये थोड़ा सा अगड़म बगड़म वाला था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे करना पड़ता है करके। तो अभी तक हमने क्या क्या सिखाया? हमने सिखाया कि क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, फिर कैसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के आंसर्स को, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, and now we are gonna do हार्ड सम करते करते कभी कभी बेसिक भूल जाते हैं बेटा, वही तो डर रहता है मुझे हमेशा। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको पूरे के पूरे इंटीजर के रूल्स वापस रिपीट करवाया मैंने आपको, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। और अभी हम करने वाले डिवीजन। बेटा डिवीजन की मुझे नहीं क्या पहले से हंसी आती है, क्योंकि डिवीजन एक ऐसा है ना, अभी फ्रैक्शन के अंदर बोलते डिवीजन है पर हम करते कभी डिवीजन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? बताता हूँ मैं कैसे। देखो अभी ध्यान दो फिर से। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना क्लियर? मैं सोचा क्लीन करूँ, एक मिनट रुका कैमरा को जरा सा। आई होप कि आपको हाँ आ गया ना पूरा क्लियर फिर से। चलो ठीक है, नाउ वी आर गोना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दिस इज PS 22 वी आर सॉल्विंग एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब करना क्या है, देखो नंबर क्या दें मुझे पहला, 40 फर्स्ट वन, ओके, 40/12 डिवाइड बाय 10/4। अब बेटा एक बात को याद रखने का, इन दी division of fraction we never do the division, we turn that division into multiplication and then we proceed further। इस बात को बेटा हमेशा याद रखने का। आपको क्या बोला सर ने? इन डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, we convert that division into multiplication and then we proceed further। जैसे कि अभी देखो 40 first number will always remain same, okay, this division अभी याद रखना, this division will be converted to multiplication and by writing how, by writing the multiplicative inverse of the number which comes after the division sign। तो 10/4 है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4/10। अभी ये बात आपको हमेशा याद रखने की बच्चा। ठीक है, we have to convert that division into multiplication by writing multiplicative inverse of divisor, this is divisor actually, okay, या फिर the number which comes after the division sign, okay। हाँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नॉर्मल रूल, क्या रूल है अपना मल्टीप्लिकेशन का, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, ओके, एंड देन वी हैव डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। अभी ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट एकदम। देख रहे हो 10 की टेबल में क्या आ रहा है, यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, 10 4 है ना, तो डिवाइड बाय 10 भी करना है मुझको, ओके।
और 4 की टेबल में 12 आता है, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4 आल्सो, इजंट इट। अब देखो जब मैंने इस 10 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4, 10 4 जा 40 होता है ना, इजंट इट। फिर यहाँ पे क्या होगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। नाउ विच आर द नंबर्स रिमेनिंग विथ मी, 4 1 3 एंड 1, इजंट इट। सो 4 into 1 आंसर कितना आएगा 4 जा, 3 into 1 आंसर कितना आएगा 3 जा, और ये हो गया हरिओम, झकास। मतलब इसके डिवीजन का आंसर ये आने वाला है मेरा, ठीक है। और बेटा फाइनल आंसर लिखना मत भूलना। अगर आपको हमेशा इस बात को याद रखने का कि वेन एवर वी राइट ऑल दिस स्टफ, ओके, आफ्टर डूइंग दिस, तो आंसर लिखने को भूलने का नहीं कभी भी, ठीक है। आप चाहते तो आंसर दो तरीके से दे सकते हो, एक बस ऐसे आंसर लिख के 4/3, ये भी चल जाएगा। दूसरा कैसा, कोई कोई क्या करता है पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखता है पहले, 4/12 डिवाइड बाय 10/4 इक्वल्स टू 4/3, कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। नहीं बच्चा, तुम्हारा आज 8 का नहीं होगा बेटा, 8 का कल होगा। आज इनको खत्म, ये लेसन खत्म करवा के फिर तुम्हारा 8 को होगा, कल होगा बेटा, 7:45 टुमारो। अभी सेकंड वन, आई होप कि आपको समझ में आ गया बेटा ये आंसर कैसे लिखते तो, ठीक है। मैं आपको एंड में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ, तब ले लेना बेटा, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये तो बड़ा इजी है, -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10। क्या लगता है आपको क्या करना पड़ेगा, फंडा वही रहेगा, ये डिवीजन साइन कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, ओके, एंड द सेकेंड फ्रैक्शन जो भी होता है, कौन सा वाला, डिवीजन साइन के बाद वाला, ओके, उसको हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, है ना। तो क्या बनेगा, रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन ऊपर ही रहती है, डिनोमीटर गया ऊपर और न्यूमीटर आ गया नीचे, आ गया। अब करो मल्टीप्लाई, है ना, अपना फंडा वही, -10 इंटू -10 द होल अपॉन 11 इंटू 11। अब सर ने आपको मल्टीप्लाई का एक रूल बोला था, याद है कौन सा, कि अगर मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव साइन होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका आंसर पॉजिटिव बन जाता है या नहीं। सर ने बताया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, इंटीजर के रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे कोई भी कटिंग भी नहीं होती बेटा, कोई भी रिडक्शन भी नहीं होता है ना। तो फिर 10 10 100 एंड डिनोमिनेटर में 1 to 1, एंड इस तरीके से हमने ये आंसर भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। समझे आप या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना बेटा। अब आता है थर्ड वन, यस डोमिनिक, करेक्ट। नेक्स्ट वाले में क्या बताना चाहते हो अभी अपने को, -7/8 डिवाइड बाय -3/6, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बेटा अभी, अब चलो अब मिल के बांट के सॉल्व करते हैं। अभी हम हमेशा फर्स्ट नंबर क्या करेंगे, एज इट इज, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा सेकंड नंबर का, तब मैं आगे जाऊं, जल्दी बताओ, तो ही मैं आगे लिखूंगा, फिर जल्दी बोलो फटाफट एकदम। हाँ, -6/3, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो माइनस की साइन तो वैसे कैसे रहती है, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर और नंबर चेंज हो गया। अभी बेटा मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, तो अभी याद रहता है, पर कुछ टाइम के बाद, कुछ थोड़ी देर के बाद, मतलब क्या, थोड़ा टाइम जाने के बाद, तो अब इन बात को भूलना नहीं बच्चा, कि सर ने ऐसा कुछ डिजाइन विजाइन बना रहे थे, सर सर्कल मार के एरो बता रहे थे, कुछ चेंज हो रहा है करके, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी रहेगी, नहीं तो बच्चे भूल जाते राजा मेरे। मैंने बहुत बार हुआ ऐसा कि बच्चों को भूलते हुए देखा हुआ है, ठीक है। तो -7 इंटू -6 देन 8 इंटू 3। अभी आपको क्या लगता है, जल्दी बोलो फटाफट एकदम, कि अरे वाह अदिति का तो हो भी गया, वेरी गुड अदिति। अब देखो ये दो नंबर और या फिर ये दो नंबर, कुछ भी पकड़ो आप उसको, ये दोनों की कटिंग होती है, इजंट इट। हम इन दोनों को पकड़ते हैं, ठीक है। कैसे होगा बताओ तो जरा मुझको, जरा चेक तो करो। देखो डिवाइड बाय 2 मैंने किया पहले, ठीक है। अब क्या होगा, इसका आंसर कितना आएगा, देखो -3 आएगा, क्योंकि ये साइन कंटिन्यू हो जाएगी। इसका आंसर कितना आएगा 4। अब मेरे पास नंबर क्या है, -7, -3, 3 एंड 4। अब फिर से इन 3 की कटिंग होती है, इजंट इट, होती नहीं होती है। तो ध्यान से देखो सर कैसे लिख रहा है, तो कुछ ऐसे है ना, अभी आपका स्ट्रक्चर ये, तो मैं फिर से डिवाइड बाय 3 कर दूंगा उसको, समझे आप। तो 3 का क्या होगा, फिर ये भी 1 जा और ये होगा -1। अब देखो जब ये नेगेटिव, दोनों भी नेगेटिव नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 7 1 जा होता है 7 एंड
4 वन जा होता है 4, और इस तरीके से मेरा आंसर कितना आया, पॉजिटिव 7/4। अभी आई होप कि आपको समझ में आया होगा आंसर कैसे किया करके मैंने, इजंट इट? आई होप अच्छा। वेरी गुड। आप क्या कर रहे हो बेटा, देखो नंबर देख रहे हैं आप, अपने लिखने के बाद क्या होता है, 2 की टेबल में 6 आएगा, कितना बना, 2 6 जा 3, 2 3 जा 6, मैं इससे नहीं मल्टीप्लाई ये कर रहा हूं बेटा। हाँ, क्या किया आप लोगों ने, क्वेश्चन में गड़बड़ी की है क्या, मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है क्या, नहीं क्वेश्चन भी करेक्ट है बच्चा, बच्चा सब कुछ तो सही है। देखो आपको बताता हूं मैं आपको एक को मदद से बताता हूं, ठीक है। आपने अगर 3 से भी किया ना बेटा उसको, देखो अब देखो आपको बताता हूं मैं, चलो ये मेथड है, ये मेथड देखो, हमारे पास कौन सा था, -7 इंटू -6 द होल अपॉन 8 इंटू 3, ऐसे था, करेक्ट? समझे आप? अभी क्या होगा, इसको डिवाइड बाय 3 किया आपने, इजंट इट? डिवाइड बाय 3 किया ना आपने, मैंने बस डिवाइड बाय 2 किया था। सो 3 1 जा 3, एंड देन यहाँ पे कितना है तुम्हारा, ये नेगेटिव साइन कट करके -2 आया, है ना? फिर आपने ये क्यों भूल गए कि ये 2 और 8 की भी कटिंग होती है। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला आपको, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए था ना। ठीक है, आपने क्या कर दिया फिर से सीधा, 7 इंटू 2 14 एंड 14/8 कर दिया। अगर चलो किया तो वो भी चलेगा, किया तो भी, पर आपको क्या करना फिर आगे, 14 और 8 में भी तो कटिंग होती है, दोनों भी नंबर किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, है या नहीं? समझे आप बात को मेरी? तो वैसे भी तो चल जाएगा। देखो आपने ऐसा किया ना, फिर उसको ये क्या कर दिया आपने, +14/8 लिखा है, पर फिर से ये नंबर 2 की टेबल में डिवाइड होते हैं। जब तक आपका ऐसा स्मॉलेस्ट या शॉर्ट ऐसा रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं आता है, तब तक आपको डिवाइड करते जाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है आपको हमेशा आंसर को। तो क्या आएगा मेरा फिर आंसर, +7/4, फिर से मैं वहीं पर आ गया। अब क्या कर दिया आपने, जिनको तोड़ने का था आपने उनको पहले बड़ा किया, इजंट इट? 7 टू द 14 करके उसको बड़ा मूव कर दिया उसका। अब चलो ये तो इजी था कि इवन नंबर थे, 2 से डिवाइड हो गया, पर कैसा, आपको जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आता है तब तक आपको डिवीजन करते रहनी पड़ती है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे हुआ था, देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया 2 से पहले, तो क्या होगा फिर, ऊपर -3 आया, नीचे 4 आ गया। अब ये दोनों की डिवीजन होती है ना फिर से 3 3 की, तो मैंने वो किया बेटा फिर से, अंडरस्टूड? ठीक है, अभी समझे आप ये कैसा हो रहा है आंसर, तो देखो ये मेरा ये मिनट का अब ये था मेरा वाला मेथड जिससे आया, और भी आप जैसे आपने बोला था ना आप मुझको कि सर मतलब आपने 14 लाया पहले, तो ये 14 वाले मेथड से, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसे बेटा, दोनों तरफ से आंसर है, यही तो मैथ्स की खासियत है कि यहाँ पर आप बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं, और जिसको ये आ गया बस वो जीत गया बेटा। याद रखो मैथ्स में आपको रावण बनना पड़ता है, रावण, सिर 10 थे ना रावण को, है या नहीं? बोलते हैं 100 हमेशा अपन से 10 10 सिर बनाते हैं उसके, मतलब क्या, बंदा एक ही है पर 10 दिमाग से सोचता था, वैसा यहां पर भी होता है, क्वेश्चन एक रहता है पर आपके पास 10 तरीके होने चाहिए, 10 दिमागों से सोचना चाहिए आपको कि किस तरह से हो जाता है करके। अगर आप मैथ्स में रावण हो तो बच के बरी बेटा, फिर तो क्या बात है, आप तो चैंपियन बनने वाले हो फिर, समझे आप? ये हो गया अभी आपको, ये समझ आया कैसे कैसे किया करके, हमने याद रखना बच्चे इन पैटर्न को। अभी अपन नेक्स्ट वाला जाते हैं। हम्म, होता होता है बेटा, मिस्टेक नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे, मिस्टेक तो अपने दोस्त होते हैं बेटा, है ना, वही तो बताएंगे कि हमें किस बात के ऊपर ज्यादा काम करने का करके। मैं थोड़ा सा टेबल को आगे ले लूँ, 1 मिनट को बेटा, स्टैंड को आगे कर लेता हूँ, ओके चलो। हाँ साची कोई बात नहीं रे, तुम ऐसा झगड़ा वगड़ा मत करो, चलो चलो तो ध्यान दो, अभी इधर हम सीखने के लिए आए ना यहाँ पे। चलो फोर्थ वाला, 2/3 डिवाइडेड बाय -4। अरे हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ये मेथड 1, 1 मिनट को, दिस इज, मैं लिख रहा हूं मेथड M1, मतलब क्या, मेथड 1, ओके, एंड दिस इज M2 मतलब मेथड 2, और ये रहा तुम्हारा अभी स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है?
ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, आई होप। अभी आगे बढ़े। इजी है ना बहुत, ऐसा कुछ हार्ड तो है ही नहीं, करेक्ट है ना बेटा? क्या मुझे इजी लग रहा है बस और मेरे लाडलो को हार्ड लग रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? अब देखो 2/3 डिवाइडेड बाय 4 -4 बोला हुआ है, तो इस -4 की जगह पे अपने को, मैंने सर ने क्या बोला था आपको कि हम यहाँ पे जबरदस्ती वाला क्या कर सकते हैं, एक 1 ले सकते हैं ना। ये रहा मेरा जबरदस्ती वाला 1 जो मैंने ब्लैक पेन से बताया बेटा जानबूझ के, ठीक है। ओके, लिया नहीं है स्क्रीनशॉट? फिर से बताऊं? कर लिया पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप। अब इससे ज्यादा अपन अगर टाइम पास करें तो कैसा होगा? वैसे भी खास बात क्या रहती है स्ट्रीमिंग की, आप फिर से वापस बैक ले सकते हो ना, बैक लेके फिर से देख लेने का कि कहाँ पे था करके, फोटो उतना जब भी आपको मिले तब ले लेने का उसको। एल्बिन एंथनी बेटा, कौन है ये एल्बिन एंथनी? नाम क्या बेटा तेरा? अगर रेगुलर आता है तो अच्छी बात है। चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। सर ने क्या बोला आपको कि हम यहाँ पे जबरदस्ती वाला 1 डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो कैसा करने का? पहला स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, मैं इस डिवीजन को कन्वर्ट करूंगा, हाँ एल्बिनी नाम है, ओके ओके ओके, डिवीजन को कन्वर्ट करूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन में, इजंट इट, जैसे सर ने बताया था आपको। और फिर इसके बाद का जो नंबर रहता है उसको मैं करूंगा रेसिप्रोकल, तो माइनस की साइन ऊपर ही रहती है हमेशा रेसिप्रोकल में, ये 1 जाएगा न्यूमरेटर में, 4 आएगा डिनोमिनेटर में। और फिर हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या कहते हैं? रूल न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, इजंट इट, एंड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या करना है मुझको? डिवाइड बाय 4 होगा ना यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 होगा, सॉरी डिवाइड बाय 2, तो फिर 2 1 जा 2 2 जा, अब याद रखने का, अभी इसके बाद और भी डिवीजन नहीं होती है। फिर 1 इंटू -1, आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। फिर क्या होगा? 3 इंटू 2, आंसर कितना आया? 6, एंड दिस इज व्हाट माय आंसर इज, इजंट इट? आई होप हम अच्छा कि आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और अपने जो पहले मिस्टेक की ना, वो पहले मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। वो पहले वाली मिस्टेक कि थोड़ा सा घाई घाई में आपने स्किप कर दिया था सेकंड टाइम भी डिवीजन करना। अब हम थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वाला, हाँ एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला लेते हैं। 2 1/5, ओके, डिवाइडेड बाय क्या दिया है? 5 3/6, ओके। सो सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा मेरा? इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है ना। तो कैसे कन्वर्ट करते? देखो मैं जस्ट अब डायरेक्टली कर सकते हो, 5 2 जा +1, 6 5 जा +3, ओके, कुछ इस तरीके से। अभी अगर आपने ये स्टेप नहीं भी बताई, देखो जो मैं लिख रहा हूं ना, अगर आपने नहीं भी बताया तभी भी ओके है, ठीक है। 6 इंटू 5 +3 एंड देन द होल अपॉन 6, ये स्टेप अगर नहीं बताए तभी चलता है। आपसे ज्यादा आंसर देने का बेटा, क्या आएगा आंसर? देखो 5 2 जा 10, 10 + 1 11, तो 11/5 डिवाइड बाय 6 5 जा 30, 30 + 3 33, सो 33/6, ठीक है। हम डायरेक्टली इस स्टेप से ही यहां पर जंप कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात को याद रखना। फिर दूसरी स्टेप क्या बोली सर ने? हम पहला जो फ्रैक्शन होता है वो एज इट इज लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया एज इट इज। दूसरे फैक्ट फिर क्या करते हैं? हम डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद जो फ्रैक्शन होता है डिवीजन साइन के बाद, हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो क्या होगा फिर वो? 6/33। तो इसका अपना एक ही फंडा है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, देन वी हैव डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, इजंट इट? बेटा कौन सा फिर से समझाओ? ये वाला बेटा, ये तो इसे ही ना, देख मैं तेको बताता हूँ, हाँ देख, यहाँ पे होता है होल नंबर कोई तो भी, यहाँ पे होता है न्यूमरेटर और यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर, तो हम हमेशा इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ओके, और फिर जो भी आंसर आएगा उस आंसर का करते हैं हम यहाँ पे एडिशन।
इतनी बात को याद रखने का हमेशा, मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन इस पैटर्न से रहेगा। देखो 6 फायदा 30 प्लस 3 33 हो गया इमीडिएटली। कुछ इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है, भूलना नहीं बेटा। अब ये कर दिया हमने यहाँ पे। अब चेक करो कि इनमें से कौन से नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ आ रहा है दिमाग में, आ रहा है? 11 3 होता है ना, डिवाइड बाय 11 किया मैंने, समझो पहले। तो कितना आंसर आएगा मेरा? 11 एंड देन 3। अब मेरे पास कौन से आंसर है? 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, और यहाँ पे क्या है? 5 इंटू 3, इजंट इट? अच्छा मैंने क्यों लिखा पता है क्या? कि मैं तो यहाँ पर भी आपको बोल सकता था, देख रहे हो ये 3 की टेबल में भी 6 भी जाता है, इजंट इट? तो मैं यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3 लिख सकता था, लेकिन आपको बस क्लियरली बताने के लिए मैंने बाजू में लिखा उसको, बस इतना ही किया। अब देखो, जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो मुझे क्या मालूम पड़ा मुझको कि यहाँ पर 3 और 6 की डिवीजन होती थी, दोनों एक ही टेबल में आते, और इसलिए सर ने क्या कर दिया, बस आपको बताने के लिए अलग से लिखकर मैं बता रहा हूँ आपको भी कि 3 1 जा एंड 3 2 जा। अब मेरा आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 1 आंसर इज 2, 5 इंटू 1 आंसर इज 5, और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है? अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखने का बच्चा। जल्दी से एक फोटो खींचो जल्दी से इसका। फोटो खींच लो बेटा, आई होप कि आपने फोटो खींच लिया होगा। खींच लिया? वेरी गुड। अब तुम्हारा हम, हाँ एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन एकदम 6th वाला। क्या बोला जा रहा है उसके अंदर? -5 अपॉन 13 वी हैव डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 26। कुछ नोटिस हो रहा है आपको? अरे बच्चा कुछ नोटिस हो रहा है उसके अंदर? अब सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी हमारी कि हम इसको तो पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं, 5 अपॉन 13। अच्छा ऐसे मैंने, अरे बेटा मैं लिखने में बिजी था वहां पे नीचे, ठीक है, समझाने के लिए आपको। हाँ आप बहुत सारे जिन्होंने आंसर दे दिए मुझको। यस बेटा, अरे डोमिनिक एकदम करेक्ट ऑब्जर्वेशन किया बेटा तुमने। मैं वही बताने वाला था, आपने ऑब्जर्व किया क्या? कुछ 13 की टेबल में 26 आता है ना, तो हाँ कुछ ऐसे पहले से ऑब्जर्व करके रख देने का बेटा। पर याद रखना ये उल्टा होना चाहिए, बाद में उल्टा होने वाला है, तो वो भी आपके दिमाग में रखने के बाद। इंटू 26 अपॉन 7, ठीक है, वेरी नाइस बेटा, एकदम लगे छा गए बेटा आप तो, मुझे ना सुपर से भी ऊपर वैसा कर रहे मेरे बच्चे। 26 द होल अपॉन 13 इंटू 7। अब ये 13 की टेबल में ये 26 आ जाता है, तो मेरे होशियार बच्चों ने ये पहले ही भाप लिया, बराबर चेक कर लिया बराबर। अब क्या होता है, बस मल्टीप्लाई करना है, -5 इंटू 2 आंसर कितना आएगा? -10, ओके। 1 इंटू 7 आंसर इज 7, और ये हो गया हरिओम, ठीक है। याद रखना एक ही नंबर के अंदर नेगेटिव साइन थी, इसलिए मेरा आंसर में नेगेटिव साइन आ गई, ठीक है, इस बात को भूलना नहीं बच्चा। अब गाड़ी आती है, हाँ वेरी गुड, हो गया, सबने फाइनेंस दिया बेटा, वेरी नाइस बेटा, नाइसली डन राजा, एकदम नाइसली डन। हाँ अब आपको चाहिए तो फिर तो इजी बोला, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं आपको, जो हार्ड वाले थे उनका स्क्रीनशॉट लेने का था, है ना। अब देखो 7th वाला क्या बता रहा है क्वेश्चन, ये 9 अपॉन 11 डिवाइड बाय -8, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझको, वही फंडा अपना, क्या कि पहला फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं, इक्वल टू साइन इधर है, ठीक है, पहला फ्रैक्शन एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सर ने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में हमें क्या करने का है, जबरदस्ती वाला एक 1 पकड़ने का है, ठीक है कि नहीं, पकड़ लिया हमने 1। हाँ बेटा इजी हो गया ना अभी तो। फिर डिवीजन का क्या होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव की साइन ऊपर, देन 1/8, हाँ रेसिप्रोकल, यस बेटा यस। फिर आगे क्या होगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 9 इंटू -1, ओके, एंड देन वी हैव 11 इंटू 8। अभी ऊपर नीचे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसे कि सर ने पहले भी बोला था आपको, तो क्या करते हैं, सीधा सीधा आंसर देते हैं, एंड माय आंसर इज वेरी नाइस। सांची सांची बहुत होशियार लड़की है, सभी होशियार एक्चुअली, तो तुमने आर्यन सबने बराबर आंसर दिया मुझको, उसमें कोई शक ही नहीं बच्चा, उसमें ऐसा थोड़ा भी शक नहीं मुझको, ठीक है। डन हो गया, कैसे किया हमने तो। अब अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बाकी, आई होप कि आप वो कर लोगे खुद ही सॉल्व, ओके, इजी वो तो क्वेश्चन।
अभी आपको क्या करना है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना नीचे के 2 क्वेश्चंस का, जैसे कि आपको इजीली पड़ जाए, क्योंकि पहले का तो हो गए थे।